चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो इसके पूरे नेटवर्क के बारे में पता नहीं होगा। आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल हो। इसके लिए वो लाखों रुपए देने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन फॉरेन एजुकेशन या फिर माइग्रेंट होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, इसके अभाव में कई बार वो गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं IELTS के बारे में, जिसके ज़रिए आप अब्रॉड में पढ़ाई करने के साथ साथ वहां का परमानेंट रेजिडेंस भी पा सकते हैं। IELTS इंग्लिश टेस्ट लेता है और इसी के आधार पर विदेश में पढ़ाई, काम और बसने का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन इसके फीस स्ट्रक्चर को लेकर एग्जाम में विदेशी कंपनियों की मोनोपोली पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इतना है कि IELTS एग्जाम के नाम पर युवाओं से अच्छी खासी रकम वसूल की जाती है। कई विदेशी कंपनियां हमारे देश में अपनी दुकान चला रही हैं, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार खुद एक कॉमन इंग्लिश टेस्ट कराए जो विदेश में पढ़ने, वर्क वीज़ा और बसने के लिए मान्य हो। कुछ ऐसा ही सुझाव आज संसद में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा की तरफ से रखा गया। पहले हम आपको ये बयान सुनवाते हैं। श्री कार्तिकेय शर्मा, Thank you, Chairman, sir. for indigenized English proficiency test. Thank you, Chairman, sir. Sir, the need for this very important subject, the IELTS, which is International English Language Testing System, and the TOEFL, which is a test of English as a foreign language exams, amongst others, are pivotal for Indian aspirants seeking education and opportunities abroad. These exams serve as a standardized measure of English proficiency required by universities and immigration departments in English-speaking countries. The industry surrounding these exams has grown significantly post-COVID-19, making it a multi-billion-dollar industry with ever-increasing volumes of aspirants registering for these exams. Approximately $3 billion, 25,000 crores, is spent every year on these exams by Indian students. One significant issue is the high cost associated with taking these exams. Every year, lakhs of Indian aspirants appear for these exams. The fees for which is usually upwards of 10,000 rupees per exam. This also indicates that a hefty annual revenue of several $billion is being generated for foreign entities conducting these exams. This cost is exacerbated by additional expenses such as coaching fees, study materials, repeated attempts, and lack of adequate exam centers, entailing to high travel costs as well. Considering the said facts, it would only be appropriate that India comes up with an indigenous English proficiency test catering to the needs of aspirations of Indians. I request the Ministry of Education to take initiative of forming a world-class test-based or internationally accepted standards and make joint efforts with Ministry of External Affairs to create its acceptance throughout the countries with global education hubs. This shall not only afford ease of access for an economically challenged aspirant, but also democratize the mechanism of learning English as a means of gaining higher education for foreign lands. Thank you, sir. राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने IELTS को लेकर जो सवाल उठाए वो आम लोगों से जुड़े हैं। इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं की कमोबेश यही राय है कि भारत में भाषा की टेस्टिंग के लिए एक अपना सिस्टम होना चाहिए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा की मांग को जायज बताया। मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज की केवल बात नहीं है, या कहीं ना कहीं टॉफल की बात करें। आज एक ब्रेन ड्रेन, अगर मैं समझता हूँ कि जो बाहर जाते हैं, अगर इस प्रकार की मैकेनिज्म डेवलप होती है तो ब्रेन ड्रेन हमारा रुकेगा। दूसरी बात, एक कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाए कि लोगों में, यहाँ के स्टूडेंट्स विशेषकर जो एक क्रेज होता है बाहर जाने का, तो वो कहीं ना कहीं अगर इंडिया में वो सारी चीज़ें हम डेवलप करते हैं तो एक आत्मविश्वास ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम नालंदा विश्व थोड़ा अतीत में जाते हैं तो एक माना जाता है कि भारत एक विद्या के केंद्र है, तो वो एक जिसे कहा जाए बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक जनरल इंप्रेशन ये बनता है कि भाई भारत में जो बाहर लोग नहीं जाके इंडिया में आ रहे हैं, या बाहर के लोग भी हमारे आएंगे और यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो वो एक
बड़ा फैक्टर है जिसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी डिमांड है उनकी है, और ये इस प्रकार का सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बहुत ही इस पर विचार करनी चाहिए, गहन विचार विमर्श करने के बाद इस पर एक ठोस कदम उठाने चाहिए। संसद में आज राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया और साथ ही बेहतरीन सुझाव भी रखे। देखते हैं उनके सवाल और सुझाव कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि IELTS परीक्षा मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई है। भारतीय छात्र हर साल हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च कर देते हैं। टेस्ट के लिए हर छात्र की फीस 10,000 रुपए से ज्यादा है। कोचिंग स्टडी मटेरियल लेने पर ज्यादा खर्च होता है, जो कोचिंग इसके लिए करनी पड़ती है। IELTS के जरिए अरबों रुपए विदेश जा रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत में एक संस्था हो जो कि इस तरीके के इंग्लिश टेस्ट ले जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरें। वहीं भारत के सिस्टम में गरीब बच्चे भी विदेश जा सकें, लिहाजा उनको इस तरीके की सहूलियतें और इस तरीके की तमाम चीज़ें उनको दी जा सकें। तो IELTS जिसके बारे में कहा जाता है कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और TOEFL जिसकी उन्होंने बात की, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, अगर देखा जाए तो 7 ऐसे देश हैं जिन 7 देशों में जाने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। हम वही आपको समझा देते हैं कि IELTS है क्या। IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। IELTS इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा इसका टेस्ट है। विदेश में पढ़ने के लिए इंग्लिश टेस्ट की ये ज़रूरी होता है। UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, कनाडा, आयरलैंड, यहाँ पर ये अहम माना जाता है अगर आप इन देशों में जाना चाहते हैं। इंग्लिश पढ़ने, बोलने, सुनने और लिखने का ये टेस्ट होता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। PK सामल, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर EduXLL K-12 ऑनलाइन स्कूल, और दृष्टि गंभीर गोयल मेरे साथ प्रीति एडुसोर्सेज से इस वक्त जुड़ रही हैं। सबसे पहले दृष्टि, मैं आपका रुख इस वक्त कर लेना चाहता हूँ। दृष्टि, मुझे यहाँ पर ये बताइए कि IELTS इतना ज़रूरी क्यों है? क्या IELTS एक अहम यहाँ पर एक मैंडेटरी चीज़ है जिसको पास करके ही बच्चे विदेश में सेटल हो सकते हैं, जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, या वर्क परमिट मिल रहा है तो उसके लिए जा सकते हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए, हमारे वो दर्शक जो नहीं जानते वो आपके ज़रिए समझेंगे। तो जो IELTS, TOEFL, PT ऐसे कुछ टेस्ट है, ये ऐसे टेस्ट है जिनको देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो ऐसे देशों का मानना है कि हम जानना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे स्टडी वीजा पे या वर्क परमिट पे आ रहे हैं, क्या वो उन देशों में आगे सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं। क्या उन्हें इतनी इंग्लिश आती है कि जब वो नौकरी पे जाएं या जब वो कॉलेज में जाएं, वो लोगों की बात समझ सके, उनसे बात समझ सके, अपनी बात समझा सके। तो इन चीजों को चेक करने के लिए कि क्या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो जा रहा है वो अच्छे से इंग्लिश को समझ सकता है, अच्छे से इंग्लिश को सुन के समझ सकता है, अच्छे से इंग्लिश में अपने आप को लिख के समझा सकता है, अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, ये चारों चीजें ये टेस्ट चेक करते हैं। चलिए, चारों चीजें टेस्ट चेक करती है। PK सामल साहब, आपका रुख करता हूं। आज संसद में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो गई है IELTS के जरिए। जाहिर सी बात है कि भारत के पास युवा फोर्स बहुत ज्यादा है, उस युवा फोर्स के हाथ में बेहतरीन काम है, उसके पास आइडियाज हैं, तो वर्ल्ड में कहीं भी जाता है। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा बैरियर होता है वो IELTS का टेस्ट है, TOEFL का टेस्ट है, PT, ये सारे टेस्ट हैं। उन्होंने तो संसद में कोट किया कि 10,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, और जहां तक है 4 बार एक महीने में ये टेस्ट होता है। 10,000 रुपए एक छात्र खर्च करता है। मैंने खुद ऑनलाइन जो चेक किया वो 14,700 तक निकल कर आ रहा था। ये एक इंडस्ट्री ऐसी बन गई है जिसके हाथों में भारतीय युवा फंसा हुआ है। क्या इस मोनोपोली को तोड़ने की जरूरत आप भी समझते हैं? नमस्कार, शुभ संध्या। एक्चुअली कार्तिक शर्मा जी ने जो बोले वो सही बोले हैं, क्योंकि ना आप देखेंगे IELTS का बिजनेस ऑलरेडी 25,000 करोड़ पर ईयर हो चुका है,
और इसके लिए थोड़े से भारत सरकार को मेहनत करना पड़ेगी, बिकॉज इसमें ना डिफरेंट कंट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप वो 7 कंट्री का बात कर रहे हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड यूएसए, तो उसके लिए ना एक सबसे एक सलाह करके हमारा को इंडियन जैसे नीट जेई देते हैं, ऐसे एक हमारा खुद की एग्जाम प्रक्रिया को डेवलप करना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना, एक तो ये जो खर्चा 10,000 रुपया देते हैं वो बचेगा। सेकंड, ये इसमें क्या होगा ना, एक ऑनलाइन मेथोडोलॉजी का माध्यम में ऑल्सो हम एग्जाम दे सकते हैं। तो एक्चुअली आप देखेंगे भारत की जो युवा संख्या है 25 वर्ष से नीचे 50% है, 50%। और हमारा देश में इतना नौकरी भी नहीं है, 50% 80 करोड़ बच्चे लोगों को हम जॉब दे सके कि पढ़ाई में इतना कॉलेज यूनिवर्सिटी इतना भी नहीं है। जाना चाहते हैं आसाम, तो इस केस में जो छोटे छोटे यूनिवर्सिटी हैं वहाँ इनको जाना जरूरी है। और पर्टिकुलरली आप यूके और कनाडा यूएस में सबसे ज्यादा इंडियन बच्चे जाते हैं छोटी छोटी यूनिवर्सिटी में। उनके लिए अनिवार्य है जानना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, थोड़े बहुत जानना। तो हम अपनी सिस्टम डेवलप करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। उन्होंने जो बोले वो ठीक बोले, इसी हिसाब से ही हम आगे जा पाएंगे। नहीं तो 25,000 करोड़ पर ईयर देश से बाहर जा रहा। और ये सिस्टम को पुख्ता करने के लिए एनईटी जैसे नीट एग्जाम है, इस टाइप के एग्जाम पद्धति बनाना पड़ेगा। उसी पद्धति की उन्होंने बात की, उसी पद्धति की वो बात कर रहे थे और उन्होंने सवाल के जरिए ये बात रखने की कोशिश की कि क्या हम अपने देश में एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते जिसके जरिए इस मोनोपोली को तोड़ा जा सके। इतनी बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री हो गई है, इसको हमारे बच्चों को राहत दी जाए और इस पैसे को भारत में रोकने की कोशिश की जाए। दृष्टि मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। दृष्टि, भारत में इसका मैकेनिज्म बनाने में क्या कोई समस्या आपको नजर आती है? अगर नहीं तो कैसे तैयार हो सकता है वो मैकेनिज्म जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करे और इस तरीके के जो अर्हताएं हैं जो जरूरी हैं उनको पाने में भारतीय बच्चों की मदद करे? दृष्टि, जहां तक बात है समस्याओं की, मुझे लगता है हम कोई भी नई चीज करते हैं तो उसमें चुनौतियां तो जरूर आती हैं। तो मैं इन समस्या को कहना चाहूंगी कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियां आएंगी तभी उनका जवाब से इन टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। जैसे मैं इतने ऐसे लोगों को जानती हूँ, या हम भी जब आईएलटीएस पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। तो जो ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी बखूबी समझते हैं और साथ ही ये भी समझते हैं कि हमारे देश में क्या हाल है, तो जब ऐसे लोग कमेटी में जुड़ेंगे तो वो सॉल्यूशंस भी निकाल पाएंगे और वो ऐसे टेस्ट को बहुत अच्छे से डेवलप भी कर पाएंगे। और बाकी जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे चुनौतियां आएंगी हम उनके समाधान भी निकालेंगे। जैसे जैसे चुनौतियां आएंगे उनके समाधान भी निकालेंगे। लेकिन बच्चों से लिया जा रहा शुल्क, दृष्टि, 14,700 तो मैंने खुद देख लिया एक साइट के ऊपर। लेकिन कार्तिकेय जी ने जो संसद में सवाल उठाया उसमें उन्होंने कहा कि हर बच्चे को 10,000 रुपए तक इसकी फीस देनी पड़ती है। एक महीने में 4 बार इसका ऑप्शन है, यानी कि 1 साल की अगर हम बात करें तो 48 बार ये टेस्ट केवल आईएलटीएस की तरफ से हो सकता है। टोएफएल के बारे में मैं अभी उतना साफ स्पष्ट नहीं कह सकता वो कितने टेस्ट कराती है, लेकिन आईएलटीएस एक महीने में 4 बार कराती है। तो एक बड़ा ज्यादा ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है। सांसदों का यह कहना है कि इसे भारत में रोका जाए, लेकिन मनी ड्रेन भी बहुत ज्यादा है यहां पर। दृष्टि, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टेस्ट है जिसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज इंटरनेशनल बॉडीज कर रही हैं, तो जो भी इस पे पैसा खर्च हो रहा है वो बाहर जा रहा है। लेकिन जब हम ऐसे टेस्ट को हम खुद डेवलप करेंगे, हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स होंगी, हम यहीं पे इसको मेड इन इंडिया की तरह यहीं पे इस टेस्ट को भी बनाएंगे, तो हम इसकी कॉस्ट, इसका जो शुल्क है वो बिल्कुल कम कर पाएंगे, जिससे
बच्चों पे भी जो इकोनॉमिक प्रेशर है, जो एक दबाव है कि एक तो ये एग्जाम बहुत महंगा है, आपने बिल्कुल सही बोला, इस एग्जाम की कीमत कहीं ना कहीं 15,000 रुपए है। इनफैक्ट इसमें ऐसे भी टेस्ट है जो 37,000 रुपए के भी हैं, जिसका ऐसे भी कुछ टेस्ट है जो 37,000 जितने भी हैं। तो ऐसा टेस्ट देने में ही पहले ही स्टूडेंट इतना ज्यादा डर जाता है कि अगर मेरा इतना महंगा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे केस में जब हम अपने देश में ऐसे टेस्ट बनाएंगे तो हम उनकी कॉस्ट भी कम कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है उससे जो भी पैसा आएगा वो हमारे ही इकोनॉमी में घूमेगा। तो मैं तो कहूंगी कार्तिकेय जी ने ये मेड इन इंडिया के तहत ये एक नया सुझाव हमें लेके आए हैं। मैं सिर्फ ये इंग्लिश ही क्यों, जैसे जितने भी प्रोफेशंस हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, जब भी ये बाहर जाते हैं, इन्हें यहाँ पे जबकि वो सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट क्रैक करते हैं, फिर भी उन्हें एक और टेस्ट वहां पे जाके देना पड़ता है। हम ऐसी स्टैंडर्डाइजेशन और भी टेस्ट में लाने का सोच सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में चीजें सोच सकते हैं। पीके सावल साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीके सावल साहब, चलिए, अगर देश इस पे कुछ सोचना शुरू कर चुका है तो मुझे लगता है कि कार्तिकेय शर्मा जी के सवाल के बाद इस पर मुहिम एक चालू हो जाएगी। अब आगे सोचना शुरू हो गया है, संसद में सवाल उठ गया है, सरकार इस पर जवाब देगी, सरकार इस पर सोचेगी, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, वो इन कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेंस वाला भी हो, एक्सेप्टेंस उनमें इसके लिए जगह, उसके लिए क्या कुछ करना होगा, कैसे तैयार होगा ये सब कुछ, जिसपे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके, यूएस, आयरलैंड, ये सब तैयार भी हो। एक्चुअली हमको ना हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम शुरू से थोड़े से मजबूत करना पड़ेगा, तो स्कूल लेवल में। इवन इफ आप तो जाएंगे, बिहार बोर्ड है, उड़ीसा बोर्ड है कि यूपी बोर्ड है, वो लोग अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, और हमारे को एक इंग्लिश लैंग्वेज की पर्टिकुलर सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि उनकी वहीं से ग्रोथ होना चालू हो। उन्होंने वहीं से ग्रोथ लेना चालू करें, और धीरे धीरे एक नीट टाइप का एक सिस्टम बना जाए, जिसपे जैसे टफेल और जीआरई, जिमार्ट जो भी होते हैं, इस टाइप का सिस्टम में आके वो लोग एग्जाम दे पाए। पहले इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहल करना पड़ेगा, डिफरेंट स्टेट को साथ लेना पड़ेगा, उनकी सिस्टम को समझना पड़ेगा, उनकी जो स्टेट बोर्ड में इंग्लिश एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए रखना पड़ेगा। इसके बाद जाके हम फर्दर सोच सकते हैं। तो बिकॉज ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट जनरली जो डॉक्टर इंजीनियर देते हैं वो अलग है, वो तो लिमिटेड टेस्ट है। ये तो पूरा मास टेस्ट है। तो इसके लिए थोड़े से ना अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। एक दूसरा हो गया, जो भी देखिए मैडम ने जो बोला ठीक बोली, क्या होना, जो भी हमारा टेस्ट है, हमारा पास बहुत इंटरनेशनल फैकल्टी है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री हु प्रोड्यूस मोस्ट फैकल्टी अक्रॉस द ग्लोब। आप देखेंगे हर जगह आप इंडियन फैकल्टी मिलेंगे, आपकी इंडियन टीचर्स आर बेस्ट टीचर अराउंड द वर्ल्ड। सो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो इंटरनेशनल जो भी सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट चल रहा है, वो सारे को मिला करके हमारे को एक सिचुएशन, एक प्लेटफॉर्म ऐसे बनाना पड़ेगा सो दैट हम आगे बढ़ पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी हाथ लगाना पड़ेगा। इसमें दे हैव टू गो टू डिफरेंट कंट्रीज, उनके जो डिफरेंट जो IELTS एक बॉडी है, इवन टॉफल इज ए बॉडी है, वो बॉडी से डिस्कस करना पड़ेगा। उनके साथ उनकी कंट्री का जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, सबसे बात करके उस टेस्ट को उसी लेवल पे लाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर इस बात को लेकर प्रेज किया जा सकता है, इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा सकती है कि कम से कम किसी ने तो इसकी शुरुआत की। एक बार शुरुआत हुई है तो इसके बारे में रास्ते भी खोजे जाएंगे, और रास्ते जब खोजने शुरू हो जाएंगे तो कम से कम इस हल को सामने पाया जा सकेगा जो $multi-billion इंडस्ट्री बन गई है। मनी ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत कुछ। सांसद कार्तिकेय शर्मा का यह सवाल एक तरीके से एक शुरुआत है उस सोचने के लिए कि कैसे बाहर की कंपनियां, बाहर की एजेंसियां भारत में आकर इतना कुछ लेकर निकल जाती हैं, और भारत के विद्यार्थी उसी का जरिया बनकर अपना पैसा गंवाते रहते हैं और वक्त भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल